وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے 339 مسافروں کو بحفاظت بازیاب کروایا۔ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آپریشن کے لیے کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی گئی۔ آج ہم نے ان بے رحم درندوں سے عوام کی جان چھڑا لی، لیکن پاکستان ایسے کسی دوسرے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے واقعات روکنے کے لیے ہم سب کو مل کر حصہ ڈالنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور پر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جتنے وسائل چاہیے کسی صوبے سے تقاضا کیے بغیر وہ خود مہیا کریں گے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے مسئلے پر APC بلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ 3 دن پہلے بولان میں دہشت گردوں نے ایک ٹرین جس میں 400 سے زائد پاکستانی سفر کر رہے تھے ان کو یرغمال بنایا، شہید کیا۔ اس میں فوجی جوان بھی اس میں موجود تھے۔ جنرل ناصر منیر کی لیڈرشپ میں 339 ہمارے پاکستانی ان کو چھڑایا گیا وہاں سے۔ 33 جو تھے دہشت گرد ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ ہم سب کسی ایسے دوسرے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے اور جن کو پاکستان سے محبت ہے آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ میں نے کل شہباز سلار کو کہی تھی، آج میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باخدا جتنے وسائل ان کو چاہیے، جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا۔ کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ آپ نے بلوچستان کے عوام نے 48 میں اسی کوئٹہ میں میونسپل ہال میں آپ ہی نے خوشی سے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ الحاق۔ یہ الحاق ایک قیامت تک قائم رہے گا، مضبوطی آئے گی، نکھار آئے گا، خوشبو آئے گی، محبتیں بڑھیں گی۔ کوئٹہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نام لیے بغیر تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے پر جس طرح کی گفتگو کی گئی اس کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ملک اور پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ ہمسایہ دشمن ملک نے اپنے پلیٹ فارم سے وہ زہریلا مواد نشر کیا۔ فوج کو مفتون کرنے سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے طالبان کو پاکستان میں واپسی کا موقع دیا۔ ماضی میں ایسے طالبان کو بھی رہا کیا گیا جن کے کردار سیاہ تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ قومی اتفاق رائے کے داعی تھے اور ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دوست نما دشمن اٹھ کر وطن اور سپاہیوں کے خلاف زہر اگلیں۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں نے دوبارہ سر کیوں اٹھایا؟ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا، دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا۔ افواج پاکستان کے جوان دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے۔ ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا داعی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے۔ یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ، جو ہمارے جوان جو سرحدوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں۔ This is
not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it, inshallah. आपको बताएंगे ISPR का कहना है कि खवारिज की जनूबी वजीरिस्तान और टांग की सरहद पर जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस पोस्ट पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की पोस्ट में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया और खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को चौकी की दीवार से टकराया। बहादुर जवानों ने दलेरी से मुकाबला किया और दुश्मन को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम 10 खवारिज को चौकी की बैरूनी दीवार के बाहर हलाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि खवारिज ने जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग की सरहद पर जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। ISPR ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची के इलाके में ज़ेर तामीर डैम पर नामालूम अफराद ने हमला किया। लवीज़ुकाम ज़ेर तामीर डैम पर काम करने वाले 7 मजदूर अगवा करके ले गए हमलावरों ने मशीनरी को आग लगा दी है। अभी आपको बताएंगे लाहौर के बेजिंग अंडरपास पर फायरिंग और लड़ाई झगड़े का DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने नोटिस ले लिया है। पुलिस को अपनी मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद से। मियां आबिद, क्या तफसील है इस वाक़े की और अब पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? पहले वाक़े कैनाल रोड पर बेजिंग अंडरपास के करीब एक गाड़ी शहरी इमरान नामी था, वो कपड़े खरीदने जा रहा था। उसका कहना यह है कि उसको रास्ता, उन गाड़ियों को जो 4 डॉले आ रहे थे उनके ऊपर गार्ड्स बैठे हुए थे, उनको रास्ता ना मिलने पर उन्होंने उसकी गाड़ी को रोका और उसके ऊपर फायरिंग की, जिसमें वो शख्स तो बच गया लेकिन उसकी गाड़ी को फायर लगे। उसके बाद उस शख्स ने खुद ही, क्योंकि 4 डाले थे तो एक गाड़ी को अपनी गाड़ी आगे करके रोका और उसके बाद डॉल्फिन पुलिस पहुंची तो वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस जो है उस शख्स का नाम छुपा रही है जिसके साथ इतने गार्ड थे, क्योंकि उसमें देखा जा सकता है कि कांस्टेबल भी जो है वो उस डालों में बैठा हुआ था, उनके साथ सिक्योरिटी पर संभाल था। जिन लोगों ने फायरिंग की वो एक प्राइवेट के थे। अब DIG ये तो कहते हैं कि जी इनके खिलाफ FIR दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी जाएगी और सिक्योरिटी कंपनी बंद करवाई जाएगी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो शख्सियत कौन थी जिसके साथ इतने गार्ड थे और उन्होंने सरेआम जो रशी एरिया था बेजिंग अंडरपास के करीब उन्होंने रोक के जी बदमाशी की। जी बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। मैं आपको हुकूमत ने सोलर सिस्टम से ग्रिड में जाने वाली बिजली के नर्ख कम कर दिए हैं। अब तक नेट मीटरिंग के जरिए जो सारे ग्रिड को बिजली फराहम करता था उससे 27 रुपये फी यूनिट के नर्ख से अदायगी होती थी। हुकूमत ने एकदम 17 रुपये कम करके सोलर सार्फिन से नेशनल ग्रिड को मिलने वाली बिजली की कीमत 10 रुपये कर दी है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ये फैसला मार्केट हालात के तहत किया गया था। इसका इतलाक नए सोलर पैनल लगवाने वालों पर होगा। पहले से शमसी बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 27 रुपये यूनिट के हिसाब से ही अदायगी जारी रहेगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक सोलर सार्फिन ने ग्रिड सार्फिन पर 159 अरब रुपये का बोझ डाला। सोलर बिजली की वजह से ग्रिड के बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली सस्ती करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए गज़ा में मुनज़्ज़म तरीके से ख़वातीन की सेहत के मराकज़ को निशाना बनाया और गज़ा में सिनफी तशद्दुद को जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की आज़ादाना बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन के मुताबिक सिनफी तशद्दुद और सेहत मराकज़ की मुनज़्ज़म तबाही से इसराइल ने नस्लकुशी की कार्रवाइयाँ की। इसराइली हमलों से तिब्बी सामान की किल्लत से हामला ख़वातीन की अमवात में इजाफा हुआ। इसराइल की मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट को जानिबदाराना करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने अस्पताल जाकर ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा कोयटा में मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला हाउस कोयटा में आला सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने अस्पताल जाकर ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा कोयटा में मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताते हैं ब्रीफिंग के दौरान शुरका को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों और जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक हालिया ऑपरेशन के कामयाब इनेकाद के बारे में तफसील से आगाह किया गया। पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा किया गया। सियासी जमातों के कायदीन और नुमाइंदगान, वफाकी सूबाई वज़रा, सरकारी अफसरान और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई की मज़म्मत की और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके लिए फातह ख़ानी की। बलूचिस्तान असम्बली के तमाम अरकान और तमाम सियासी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सियासी रहनुमा और नुमाइंदगान के अज़्म और बलूचिस्तान के लिए जामे और तवील मुद्दती इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों और कानून साजी के अज़्म को सराहा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सखर मुल्तान मोटरवे पर नस्ब, जदीद कैमरे, रफ्तार जांचने के महंगे तरीन आलात, सोलर प्लेट्स और दीगर कई अहम नस्ब तनसीबात चुरा ली गई हैं। अहम तनसीबात की चोरी के बाइस हादसात का खदशा बढ़ गया है।
सखर मुल्तान मोटरवे पर सखर और घोटकी के दरमियान बिजली के पोल्स, साइन बोर्ड्स, हिफाजती जालियां, जानवरों से महफूज रखने वाली बाड़, ड्रेनेज नालियों पर नस्ब जालियां तक चोरी कर ली गई हैं। सिंध पुलिस ने कुछ ही अरसे में होने वाली चोरियों के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए हैं। बहुत कीमती जो कॉपर की वायर होती है जिससे बिजली वगैरह या कैमरा सिस्टम को चलाने के लिए, वो भी चोरी हो गई यहाँ पर। तो सिक्योरिटी के इंतहाई यहाँ पर खराब हालात हैं। जानवर ऊपर चढ़ के आए, उसके लिए उन्होंने जाली लगाई थी मेश, वो चोरी हो गई हैं। उसके अलावा जो है कैमरे जो हैं वो चोरी हो गए हैं। खंबे हैं वो भी उखाड़ के ले गए चोर चुरा के। इसके अलावा बात की जाए कैमरे जो हैं, कैमरे भी जो है ना वो चोरी कर लिए गए हैं। तकरीबन 400 मीटर वायर बरामद की और एक बंदे को गिरफ्तार किया। इसके अलावा ये जो थेफ्ट के वाकयात पहले हो चुके हैं, कई एफआईआर दाखिल हो चुके हैं। घोटकी में गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज से घोटकी तक मोटरवे M5 की हिफाजत के लिए लगाई गई हिफाजती तारें, कीमती बैटरियां, सोलर प्लेटें और कैमरे भी गायब हैं। 70 मीटर से 80 मीटर तक की चोरी हुई है। ये जाली जो लगाई गई थी वो उसको चोरी किया गया पिछली रात। तो हम आगे लगा रहे हैं, पीछे से कुछ नुकसान भी कर रहे हैं कुछ, लेकिन वो कंडा तार जो अभी वो पहले से बेहतर है, उसकी ज्यादा चोरी नहीं हो रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एतराफ की बाड़ दोबारा लगाना तो शुरू कर दी है, लेकिन मुसाफिरों का कहना है कि मोटरवे पर हिफाजती तनसीबात ना लगी हों तो हादसात का खतरा हमेशा रहता है। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक फ़िज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई, जिसका मकसद दोनों अफवाज के माबैन ताउन मुस्तहकम करना था। तर्जुमान PAF के मुताबिक एयर चीफ ने दोनों मुमालिक के माबैन देरीना ताल्लुकात का जिक्र किया। पाक बहरीन फौजी ताल्लुकात और तरबियती शोबे में मजीद ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने दोनों मुमालिक के फ़ज़ाई अफवाज के माबैन ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने नेशनल ISR और इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया, जहाँ उन्हें पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। HPL PSL के 10वें एडिशन की ट्रॉफी की पाक बहरिया के ताउन से समंदर में मुनफरिद रौनुमाई 10 किलोग्राम वजनी ट्रॉफी को कीमती पत्थरों से मुज़य्यन किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वें एडिशन का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा। खेलों की तारीख में ट्रॉफी की मुनफरिद रौनुमाई में से एक मुनफरिद और जान जोखों वाला अंदाज, ऐसा न कभी सुना न देखा। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता डाइवर की महारत और पाक बहरिया के ताउन से PSL 10 के एडिशन के लिए बनाई गई 10 किलो वजनी ट्रॉफी समंदर की तह से बरामद। समंदर के बीचों बीच एक कश्ती में इसकी रौनुमाई और फिर PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज नुमाइंदों के हवाले की गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी बरतानिया के हाई कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां उनका डिप्टी हाई कमिश्नर लांसडोम और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी अफ्तार डिनर में शिरकत की। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर नए तैनात डिप्टी हाई कमिश्नर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IMF ने पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा कर दिया। टैक्स रेवेन्यू 15,000 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,745 अरब रुपए और टैक्स टू GDP शरह 13% करने का कह दिया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से ज़रूरी टैक्स वसूली तरीक़ाकार पर वजाहतें मांगी। रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने जवाब में कहा कि अखराजात में कमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग करेंगे। रज़ाकाराना रिटायरमेंट की गोल्डन शेक हैंड स्कीम ला रहे हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए दरकार $20 अरब की फाइनेंसिंग को दोस्त मुल्कों के डिपॉजिट्स रोल ओवर करके पूरा करेंगे। तुर्कम सरहद पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान जरगा 1-2 रोज़ में होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने अपने जरगा रकीन की नई फहरिस्त अफगान जरगे के हवाले कर दी है। अफगान जरगे ने कल पाकिस्तानी जरगा रकीन में की गई तब्दीली पर एतराज़ करते हुए मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी जरगा 50 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तानी जरगा मेंबर का कहना है कि मुज़ाकरात के अगले दौर तक तोरखम सरहद पर आरज़ी फायरबंदी का मौजूदा मुआहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के बायस तोरखम सरहदी गुज़रगाह 20 रोज़ से बंद है। चिलास में मुतासरीन दियामिर भाषा डैम की हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 24वें रोज़ भी जारी है। तहरीक के रहनुमा मौलाना हजरतुल्लाह के मुताबिक वापडा मुतासरीन के मसाइल हल करने में संजीदा नजर नहीं आ रहा। मुतालिबात मंजूर न हुए तो दियामिर भाषा डैम की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इस साल पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल जुमा 14 मार्च को होगा। सुबह 8:57 पर शुरू होने वाला चांद ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। 11:59 पर चांद ग्रहण अपने अरूज पर होगा। दोपहर 3 बजे चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा।